Dr. Amit, I have sent you the invitation. You just please check it. Okay. Yeah. Yes, madam. Can you hear me? Not able to hear you. Not able to hear you. Can you Not hear me able now? to hear you. Can you hear me now? हाँ अभी आ गया. Okay. अभी आ गया आवाज आपको. Okay. Yeah. Guys, can you hear me? Yeah. Now we can all hear you. I think. Okay. Yes. Okay. So I welcome you, Dr. Amit, Thank you. on, Thank you. on behalf of the whole team of Bharat Electricity. And already we have audience who already knows about you, but still there are people I would like to introduce you to all of them. So we have here, guys, 16 times Ironman, and he's the guy who has done. He's the only Asian who has done this golden quadrilateral. This Trans-Siberian race extreme, that is 9,100-kilometer race. And in 2017, I was there to witness Dr. Amit at RAM. So I really feel that I'm privileged about that. And Dr. Amit has recently finished this golden quadrilateral of India, that is in 13 days, 9 hours and 50 minutes. Excuse me. So he raised 9 lakhs for Lok Biradri Prakal. So there are many other achievements. Of course, I will have to read them out. There are so many. So Dr. Amit, first of all, my question to you: people do Ironman once, twice, or thrice, but you have done it 16 times. So I would like to know what motivates you to do Ironman again and again, and what you suggest, like why people should do it again and again. Actually, Ironman is a lifestyle. It is not it is not some like once in a while you do it. Means a lot of people do it once in a while, but for me, endurance sport is a lifestyle. It is all nowadays almost a full-time profession for me, a full-time work for me. So I keep doing, and I've done many half Ironmans and full Ironman, but I would like to do many more. It is just a nice way to stay fit, and an Ironman is a nice one-day endurance sport, one-day event. Of course, I've done multi-day events like RAM, Trans-Siberian, Extreme, and Ride Across India. But I think Ironman is a nice one-day event where you have to swim, cycle, and run all three. And
it's a nice passion to have. So we can expect more Ironmans coming on. Yeah, surely. Okay. So अमित थोड़ा हिंदी में स्विच करूंगी मैं, बहुत हाँ सारे जी, लोग हाँ। में पूरी तरह नहीं समझ सकते हैं. So we are here basically to discuss about ultra racing. कोई भी एक Right. जो नया बंदा है जो एंड्योरेंस रेस राइडिंग में आया है, उसको कैसे देखना चाहिए अल्ट्रा रेसिंग को? Ultra racing is a good, it's a good upgrade for, because nowadays lot of people are doing breves and BRMs and all, and I think पंजाब में तो बहुत लोग BRM लगाते रहते हैं. तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को अगर उन्हें BRM से बोर हो जाते हैं, बिकॉज BRM is a non competitive thing. I think races like Shivalik Signature and Romantica, 600, 700 kilometers races are a good way to, challenge yourself and push yourself, and a new way of racing is, I think, is a good thing for people who are looking for something more tougher than just doing BRMs. राइट. ओके. सो अमित, एक और क्वेश्चन आता है बहुत सारे लोगों से कि हमने तो रैम करना नहीं है, लाइक रैम का एक्सपेंस बहुत ज्यादा है, तो अगर हमने रैम में जाना नहीं है तो हम इसका कोई भी क्वालिफायर है तो वो क्यों करें? सो व्हाट यू सजेस्ट, व्हाट यू आंसर टू देम? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. रैम क्वालिफिकेशन मीन्स इट इज नॉट कि आपको रैम क्वालिफाइड होने के बाद रैम जाना ही है. आप मल्टीपल टाइम्स जैसे BRMs करते हो, आप मल्टीपल टाइम्स रैम क्वालिफिकेशन कर सकते हो, और it's a good way to push yourself and race. If you have, lot of people have competitive attitude and all, for those people these kind of races are very good, because then they can challenge themselves. क्योंकि BRM मैं आजकल देखता हूँ कि लोग BRM को रेस बना देते हैं. उनको लगता है कि BRM ही एक रेस है और मैं उसको कितने जल्दी कर सकता हूँ. तो उससे अच्छा, because BRM is non-competitive, it is, if they really want to race, then they should go to races like Shivalik Signature, and they should really push themselves, and then getting RAM qualified is a nice a kind of goal to push yourself within some particular time limits. Absolutely right, अमित. अमित, बहुत सारे न्यूबीज हैं जो यहाँ पर अभी फर्स्ट टाइम रेस करने आ रहे हैं, तो आप उनको क्या गाइड करना चाहेंगे, जैसे कि क्रू कैसे चूज करें, क्रू कैसे उनको सपोर्ट करेगा? फर्स्ट ये क्वेश्चन पे आप पहले रिप्लाई करें, देन आई आस्क अनदर. हाँ, क्रूइंग और प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जैसे बहुत सारे लोग ट्रेनिंग बहुत अच्छी करते हैं, बट क्रू का प्लानिंग, क्रू का अरेंजमेंट और एक्चुअली रेस का अरेंजमेंट करना भूल जाते हैं. उनको लगता है कि बस हमको जाना है और ये चलाना है, बट ऐसा नहीं है. आप अपने क्रू को प्रॉपरली चुनिए, अपने दोस्त, अपने फैमिली मेंबर्स क्रू में रखना बहुत जरूरी है, और क्रू के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप जब क्रू के साथ ट्रेनिंग करेंगे तो आपकी क्रू और आपकी ट्यूनिंग ज्यादा अच्छी रहेगी. बहुत सारे लोग कभी क्रू के साथ ट्रेनिंग नहीं करते और फिर डायरेक्टली आ जाते हैं रेस करने के लिए, और ना क्रू को पता होता है क्या करना है, ना राइडर को पता होता है कि क्रू के साथ कैसे रेस करना है. तो बहुत जरूरी है कि वो ट्रेनिंग में क्रू के साथ ट्रेनिंग करे, नॉन स्टॉप राइड लगाए, कम से कम टाइम वेस्ट करे, और जल्दी से जल्दी वो डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करे. तो उससे उनकी आदत बनेगी, क्योंकि BRMs में क्या होता है कि लोगों को बहुत टाइम होता है तो वो आराम से चलाते हैं, फिर उनको रुकने की आदत हो जाती है कि हर जगह आधा घंटा रुक रहे हैं, 1 घंटा रुक रहे हैं, सो रहे हैं बीच में. तो अल्ट्रा रेसिंग में वो सब तो नहीं चलता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि
लोग क्रू के साथ ट्रेनिंग करें, क्रू, और फिर रेस की भी प्लानिंग करें कि वो रेस कैसे करेंगे, न्यूट्रिशन की प्लानिंग करें कि क्रू कैसे उनका न्यूट्रिशन मॉनिटर करेगा, किस तरह से न्यूट्रिशन को हैंडल करेगा, किस तरह से कैलोरी काउंटिंग रखेगा, किस तरह से वो लोग नेविगेशन करेंगे। बहुत बार क्रू को नेविगेशन ही नहीं पता होता है, तो वो भी बहुत जरूरी है कि क्रू को नेविगेशन कैसे करना है, हमारे मोबाइल से जीपीएस मैप्स के साथ कैसे नेविगेट करना है, वो सारी चीजें आनी चाहिए। राइट, हमारे साथ हुआ था फर्स्ट रेस थी शिवालिक सिग्नेचर एंड देयर वर मेनी पार्टिसिपेंट्स और वन ऑफ द पार्टिसिपेंट हैड लाइक क्रू ऐसा था, वो बोलते पंजाबी में बोलते मुंडे खुंडे, तो वो रूट कहीं और है, कहीं और से निकाल के लेके जा रहे हैं, वो बेचारा 80 किलोमीटर से कहीं पहुंच गया, देन ही मिस द रेस। सो क्रू इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। और अमित एक और क्वेश्चन इसमें ऐड ऑन करूंगी कि क्रू में कुछ लोगों को लगता है कि साइक्लिस्ट होना उनका बहुत जरूरी है, सो व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके दोस्त होने ज्यादा जरूरी है। कभी कभी जो दोस्त होते हैं और जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सबसे अच्छे क्रू होते हैं, क्योंकि वो आपका सबसे अच्छा ख्याल रखेंगे, वो आपका खाने का ख्याल रखेंगे, आपकी सिक्योरिटी का ख्याल रखेंगे, आपकी सेफ्टी का ख्याल रखेंगे। और जरूरी नहीं है, मेरा जो क्रू है, मैंने इतनी सारी रेसेस करी है, रेस अक्रॉस अमेरिका और राइड अक्रॉस इंडिया और ट्रांस साइबेरियन एक्सट्रीम में भी, जो मेरे जो बेस्ट क्रू है वो सब नॉन साइकिलिस्ट लोग हैं। और वो कोई बहुत स्पोर्ट्स में कोई वो बहुत बड़े एथलीट्स नहीं है, पर उनको प्लानिंग ज्यादा अच्छी आती है, उनको खाना खिलाना ज्यादा अच्छा आता है, उनको नेविगेशन ज्यादा अच्छी आती है, तो वो स्किल्स ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, बिल्कुल, एक नेविगेटर आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए और क्रू में एक ऐसा बंदा मोटिवेटिंग होना चाहिए कि कहीं पर लगे कि क्या पागलपन लेके चल पड़े हैं, छोड़ो घर चलो आराम से, तो वहां पर आपको सपोर्ट करे, तो वो आपको मोटिवेट करे। ओके, सो अमित एक और चीज की इक्विपमेंट कैसा चूज करें रेसेस और किस टाइप के गियर्स उनको हेल्प करेंगे ड्यूरिंग द रेस, क्या क्या उनके पास होना जरूरी है? इक्विपमेंट तो मीन्स आपके पास मिनिमम 2 साइकिलें तो होनी जरूरी है, और आपके पास पंक्चर बनाने का सारा सामान होना चाहिए, एक्स्ट्रा ट्यूब्स होने चाहिए। फिर आपके पास साइकिल में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, जैसे चेन टूट गई या कुछ हो गया, तो चेन बदलते आना चाहिए। और आपके जो क्रू को है वो पंक्चर बनाते आना चाहिए। अगर क्रू को पंक्चर रिपेयर करना नहीं आता है, ट्यूब रिप्लेस करना नहीं आता है, एक्स्ट्रा ट्यूब्स होने चाहिए, टायर्स होने चाहिए। उसके अलावा फिर आपका जो पूरा न्यूट्रिशन का जो सामान है, आपके सिपर्स हैं, आपके पानी के सिपर्स हैं, आपके एनर्जी ड्रिंक के सिपर्स हैं, आप खाना किस में खाओगे, ये सारे चीजें आप क्रू ने आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा। फिर आपके कपड़े, आप दिन में क्या पहनोगे, रात में क्या पहनोगे, आपके रिफ्लेक्टिव जैकेट्स, आपके हेलमेट्स, ग्लव्स, फिर धूप से बचने के लिए जो भी सामान लगता है वो, ये सारी चीजें आप को प्लान करनी पड़ेगी। और उसको आपको एक पूरा चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा आपको। बेसिकली हर साइकिल से रिलेटेड कौन सा सामान है, राइडर से रिलेटेड कौन सा सामान है, फिर आपको अलग अलग टाइम पे पहनने के लिए कौन से कपड़े चाहिए, फिर रेन वेयर होना चाहिए, फिर नाइट वेयर होना चाहिए। और उसके बाद में क्रू आपका जो नेविगेशन सिस्टम है, आपके जीपीएस वॉचेस है, ये सारे आप क्या यूज करोगे, ये आपको पूरा एक चेकलिस्ट बनाना पड़ेगा। राइट, और एक चीज और अमित की अल्ट्रा रेसिंग में आपका सेटल टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, तो जितनी देर बंदा साइकिल चलाएगा उतना ही टाइम उसका बचता रहेगा। व्हेन यू स्टॉप यू आर लूजिंग योर टाइम, तो सेटल टाइम इम्प्रूव करने के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं
और कईयों को सैडल सोर्स बहुत होते हैं, तो उसके लिए आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे? सैडल टाइम इंप्रूव करने के लिए तो आपको लंबी राइड्स लगानी पड़ेंगी साइकिल पर नॉन स्टॉप क्रू के साथ, ताकि आपको आदत बने कि आप नॉन स्टॉप साइकिल पे 100 200 300 किलोमीटर चला सकते हैं मिनिमम ब्रेक के साथ। तो आपको क्रू के साथ अगर आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपका सैडल टाइम इंप्रूव होगा। उसके बाद आपके पास अच्छे क्वालिटी के शॉर्ट्स होने चाहिए, साइकिलिंग शॉर्ट्स होने चाहिए, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके कंफर्ट के लिए बाइक के ऊपर। और आपका जो सैडल का हाइट है और सैडल का पोजीशन है वो भी ऑप्टिमम होना चाहिए लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग के लिए। तो आई थिंक ये 3-4 चीजें अगर अच्छे से आप रखेंगे। साइकिलिंग शॉर्ट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपके साइकिलिंग शॉर्ट्स अच्छे क्वालिटी के हैं तो आप बहुत देर तक सैडल पे बैठ सकते हो। अमित, आप तो माइल्स एंड माइलर्स एंड्योरेंस एकेडमी रन कर रहे हो। आई थिंक नागपुर के लोग बहुत लकी हैं, वहां पर आपसे लाइव ट्रेनिंग ले रहे हैं, बट देर आर पीपल हु आर टेकिंग ऑफलाइन ट्रेनिंग ऑल्सो। सो आई होप कि उनकी परफॉर्मेंस में बहुत बहुत फर्क पड़ा होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है, बस साइकिल दौड़ा रहे हैं, तो थोड़ा आप उनको भी गाइड कर दीजिए कि थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कैसे करें फॉर दिस टाइप ऑफ रेसिंग। और देख लेना, हफ्ते में 7 दिन साइकिल चलाना है, रोज 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर साइकिल चलाना है, कि क्या करना है, थोड़ा सा आप उनको गाइड करें। नहीं, इतना बहुत सारे लोगों को लगता है कि अल्ट्रा साइकिलिंग करने के लिए बहुत ज्यादा साइकिलिंग करने की जरूरत है। ऐसा नहीं है। आप हफ्ते में 3 या 4 दिन भी साइकिल करके आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग कर सकते हो। और साइकिलिंग के साथ आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। जिम जाके अपने लेग्स और लोअर बॉडी में स्ट्रेंथ और पावर बढ़ाना बहुत जरूरी है। फिर ओवरऑल फिटनेस भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका बैक स्ट्रांग नहीं है तो आप इतने घंटे कैसे बैठोगे साइकिल पे। तो लोअर बैक स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। लोअर बैक, अपर बैक, आपके थाइस, क्वाड्स, काफ, देयर इट्स एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप ये सब कुछ ये अपने ट्रेनिंग में सिर्फ साइकिलिंग करना जरूरी नहीं है। आपको ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, स्पीड ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और उसके अलावा आपको लंबी राइड्स भी लगानी पड़ेगी। जब आप लंबी राइड्स लगाओगे तो आपका स्टैमिना बढ़ेगा। स्पीड राइड्स लगाओगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करोगे तो आपके पैर स्ट्रांग होंगे, ताकि आप और फास्ट चला सके बिना थके, और आपको क्रैम्प की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको सब टाइप के एलिमेंट्स आपके ट्रेनिंग में रखना पड़ेगा। इट इज नॉट जस्ट ओनली साइकिलिंग साइकिलिंग ऑल द टाइम। राइट। अभी लॉट ऑफ ये जो बीआरएम्स लगाते हैं कंटिन्यूअसली, उनको लगता है कि बस बीआरएम ही लगाते रहेंगे, तो उनकी उससे क्या होता है कि आप जब बहुत ज्यादा लंबी राइड्स लगाते हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ज्यादा ओवर ट्रेनिंग ना करें। बीआरएम इज अ ब्यूटीफुल कल्चर, बट वो एक अलग चीज है, कॉन्सेप्ट ही अलग है। और अगर हम उसमें रेस लगा रहे हैं तो मतलब खुद को बेवकूफ बनाने वाली बात है। बेटर कि आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए जहाँ पर एक्चुअल में रेसिंग हो रही है। हाँ, अभी इंडिया में ज्यादा रेसेस नहीं है तो लोगों को लगता है बीआरएम ही एक रेस है, बट BRM is not a race, it is just a challenge. It is a good beginning, and people who want to get serious and do some racing, I think it is a going for ultra cycling races is a very good concept। और ultra cycling टीम के साथ करना, और टीम के साथ वो उसका मजा ही अलग है। राइट, राइट। थोड़ा सा ये ड्रॉबैक ये हो जाता है अमित कि थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाती है रेस, क्योंकि एज ए ऑर्गेनाइजर वी हैव एक्सपेंसेस, और जो राइडर्स हैं उनको एक गाड़ी अपने साथ लेके चलनी पड़ती है, 3-4 चाहिए, है ना। खर्चा तो होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये जो पूरी गेम है इसमें ये है कि अगर स्पॉन्सर्स आ जाए
whether they belong to some cycling sport, but नॉन साइकिलिंग बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर वो फ्रेंड्स आके सपोर्ट करें तो इवेंट ही कहीं का कहीं पहुंच जाता है और रेसर पे भी बर्डन नहीं आएगा, क्योंकि उनकी भी फीस वहां पे मिनिमाइज हो सकती है और ऐसे ऑर्गेनाइजर पे भी बर्डन नहीं आएगा। तो ये चीज होना जरूरी है, बट आई थिंक इट्स टेकिंग लॉट ऑफ टाइम हियर, और फिर होंगी चीजें, धीरे धीरे होंगी। ओके, सो अमित, एक और चीज, अगर हम कंपेयर करें इंडिया में ही, लाइक साउथ और नॉर्थ, साउथ में साइकिलिंग काफी एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है, लेकिन स्पेशली दिल्ली के बाद जितना भी नॉर्थ हम देखते हैं वहां पर अभी उतना ज्यादा कुछ नहीं हो पाया है। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में, लाइक व्हाट इज द रीजन और व्हाट स्कोप यू लुक इनटू दैट, कि कैसा होने वाला है अभी? नहीं, ऑफ कोर्स एक्चुअली ऑल ओवर कंट्री साइकिलिंग एज अ स्पोर्ट बहुत बढ़ा है ये कोरोना के टाइम से, और बहुत लोग नए लोग साइकिलिंग में आए हैं। आई थिंक नॉर्थ में भी तो बहुत अच्छी साइकिलिंग हो रही है, ऐसा नहीं है कि नॉर्थ में नहीं हो रही है, बट हाँ, वी वांट मोर रेसेस एंड वी वांट more races for people who are in एज ब्रैकेट ऑफ 30 to 50 years। इन लोगों के लिए ज्यादा रेसेस होनी चाहिए। अगर ये एज ग्रुप के लिए अगर ज्यादा रेसेस होने लगी तो इसमें कॉम्पिटिटिव एलिमेंट आएगा और फिर लोग ज्यादा सीरियसली ट्रेनिंग करेंगे और ओवरऑल फिर साइकिलिंग एज अ स्पोर्ट इम्प्रूव होगा। राइट। अमित, in between आपको थोड़ा सा रोकूंगी, there are questions from viewers। सोनू यादव जी हैं, उनका एक क्वेश्चन है कि सर व्हाट इज द राइट एज फॉर अल्ट्रा साइकिलिंग? I think right age for ultra cycling is about 30-35, because तब आपका you are more mature, you are more trained, your mind is more matured as a athlete, as a person। और अल्ट्रा साइकिलिंग के लिए सिर्फ साइकिलिंग की जरूरत नहीं होती है, अल्ट्रा साइकिलिंग के लिए एक काम माइंड और एक स्ट्रैटेजी से जाना होता है। ये कोई 40-50 किलोमीटर की रेस नहीं होती है कि आप बहुत फास्ट चलाओ और जीत जाओ। इसको आपको एक स्ट्रेटेजी के साथ करना होता है। तो आई थिंक बेस्ट एज फॉर अल्ट्रा साइकिलिंग इज अबाउट 35 to 55। दैट इज द बेस्ट एज। 55 के बाद नहीं? 55 के बाद में भी कर सकते हैं। एक्चुअली 55 के बाद में भी आप देखेंगे इंटरनेशनली तो बहुत अच्छे अच्छे अल्ट्रा साइकिलिस्ट हैं जो 60 इयर्स में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आई थिंक 40 के बाद तो और भी ज्यादा अच्छा आदमी ट्रेनिंग कर सकता है और मैच्योर्ड माइंड के साथ रेसिंग कर सकता है। ओके, अमित, एक और क्वेश्चन है, डॉक्टर साजनप्रीत सिंह है, तो आई थिंक ही इज योर स्टूडेंट, और उनका क्वेश्चन ये, टिप्स दीजिए स्पॉन्सरशिप लेने के लिए। हाँ, क्या क्वेश्चन है उनका? कि हाउ टू गेट अ स्पॉन्सर। स्पॉन्सर आई थिंक स्पॉन्सर एक अभी डिफिकल्ट चीज है, क्योंकि साइकिलिंग एज अ स्पोर्ट इतना बड़ा नहीं हुआ है। और बट आई थिंक अभी तो काफी लोगों को स्पॉन्सर्स मिल रहे हैं, छोटे छोटे कंपनीज, जैसे जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड कंपनी है, जो हमारे स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, साइकिलिंग से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, और तो वो लोग आर अवर पोटेंशियल स्पॉन्सर्स, और एनर्जी ड्रिंक से रिलेटेड है। So all these people are our potential sponsors, and I think स्पॉन्सर मैं भी जब स्टार्टिंग में रेसिंग करता था, ट्रेनिंग करता था, तो मुझे तो कोई स्पॉन्सर नहीं हुआ करता था, और मुझे तो 4-5 साल 6 साल लगे ये सब सीरियसली करते करते, जब मैं करने लगा और मेरा नाम हुआ, तो उसके बाद में मुझे लोग
स्पॉन्सर्स मिलने लगे. तो इट इज अ जर्नी. यू डोंट गेट immediately start getting sponsors and all for all this. It is a very long term journey, 5 6 years, 10 years. Once you have your name in the sport, once you have the name in the sport of cycling, then all these companies will start supporting you. Right. It will take time, of course. Yeah. Question, Amit. Mr. Shad Zaman. उनका क्वेश्चन ये है, अमित भाई प्लीज थ्रो सम लाइट ऑन डाइट एंड फूड हैबिट्स फॉर अ साइक्लिस्ट. डाइट तो आपका जैसे प्री राइड, यहाँ कुछ लोग क्वेश्चन पूछ रहे प्री राइड वर्कआउट और डाइट क्या होनी चाहिए. प्री राइड में तो आपको हाई कार्बोहाइड्रेट फूड खाना चाहिए, जैसे बॉइल्ड पोटैटोज है, या ब्रेड बटर है, या पीनट बटर जैम है, या उपमा है, पोहा है, या ऐसे हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट होनी चाहिए अगर आप 100-200 किलोमीटर की राइड पे जा रहे हो. और यू शुड और फिर राइड के पहले आप कॉफी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं. और फिर राइड के दौरान फिर आप अपने आप को खाते रहिए. यू हैव टू कंटिन्यूअसली सप्लाई एनर्जी टू योर बॉडी टू कीप राइडिंग एंड कीप मेंटेनिंग योर स्पीड एंड योर एनर्जी लेवल्स. सो इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि आप राइड लगाइए, बट तरीके से लगाइए. Right. So I think just let me check, one more question was there. So I think it's almost done. Yes, there is one more question. There's a guy who asked how to plan unsupported ultra races. Unsupported ultra races. How to plan for that? Unsupported ultra races are very different. और इसमें आपको नेविगेशन भी खुद ही करना पड़ता है, और आप क्या क्या सामान कैरी करोगे, और क्या क्या इसकी आपको चेकलिस्ट बनानी पड़ती है, और आप वो सामान कैसे कैरी करोगे, किस तरह से करोगे साइकिल पर, आपको कितना सामान चाहिए, कितना. बहुत बहुत टाइम क्या होता है कि हम बहुत ज्यादा सामान लेके निकल जाते हैं अल्ट्रा या अनसपोर्टेड राइड्स पर, और फिर वो हमारे ऊपर बर्डन बन जाता है. तो उतना ही सामान कैरी करो जिसमें आपको मिनिमल आपका उसमें सर्वाइवल हो जाए और आपका काम चल जाए. और एक्सेस सामान कभी भी कैरी नहीं करना चाहिए. और आपका बैटरीज है, नेविगेशन सिस्टम है, और मोबाइल सिस्टम है, ये सारी चीजें आपको प्लान करनी पड़ेगी. और फिर रूट आप किस तरह से रूट नेविगेशन करेंगे, ये इट इज अ वेरी आई थिंक अल्ट्रा अनसपोर्टेड रेसेस में प्लानिंग भी उतनी इम्पोर्टेंट होती है जितनी आपकी ट्रेनिंग होती है. The most important part is planning. Plan your race. Yes. And there is a guy, Mr. Halley, he is asking, please tell navigation gears. नेविगेशन तो आप मोबाइल से कर सकते हो. मोबाइल में आप राइड विद जीपीएस ऐप लगा के आप नेविगेशन कर सकते हो, या फिर आप गार्मिन पे नेविगेशन कर सकते हो. गार्मिन में पूरा रूट अपलोड करके गार्मिन आपको एग्जैक्टली आपका रूट दिखा देगा, और आप इजीली उससे भी नेविगेट कर सकते हो. इसमें एक चीज ऐड ऑन करूंगी, कई बार ऐसा होता है कि जो भी हमारे गैजेट्स हैं, दे कैन बी सम एरर इनटू दैट. बेस्ट वे इज टू रीड योर रूट शीट और क्यू शीट दैट इज गिवन टू यू इन द रेस. जैसे रेस अक्रॉस अमेरिका में भी आपको एक रूट शीट दी जाती है पूरी, तो उसमें ईच एंड एवरी टर्न इज मेंशन्ड. कोई भी एक जस्ट नॉर्मल आपको जस्ट उसको ध्यान से पढ़ना है, कहाँ पर लेफ्ट जाना है, कहाँ पर आपने राइट जाना है, जस्ट मार्क इट एंड यू विल नेवर मिस योर रूट. सो वही आपने ध्यान से फॉलो करनी है. मान लीजिए कि कहीं पर आपका मोबाइल बंद हो गया, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आपका नहीं चला, तो वहां पर आपकी वो हार्ड कॉपी ही आपके काम आएगी. सो दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. सो अमित, लास्ट क्वेश्चन.
who should participate in any ultra race? Like what should be the minimal practice he should have done already? Like ऐसा भी नहीं है कि 50 किलोमीटर की राइड करते हैं तो बस हम 600 किलोमीटर के लिए आगे, तो कम से कम कितना उसने डिस्टेंस किया होना चाहिए, कितनी उसको प्रैक्टिस होनी चाहिए? एक्चुअली अगर आप 600-700 किलोमीटर की अगर अल्ट्रा साइकिलिंग रेस के लिए जा रहे हैं, तो आपका अगर आपने 200-300 किलोमीटर चलाया है और अच्छे टाइम में चलाया है, तो आप अल्ट्रा साइकिलिंग रेस के लिए जा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन आपका 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर आप कितना फास्ट कर सकते हो। अगर आप 200 किलोमीटर का टाइम आपका बहुत अच्छा है, आप अगर 200 किलोमीटर कहीं 7 से 8 घंटे के अंदर कर लेते हो, तो आप डेफिनेटली 600 किलोमीटर की अल्ट्रा साइकिलिंग रेस में भी बहुत अच्छा करेंगे। तो आपको बहुत ज्यादा भी नहीं चलाना और बहुत कम भी नहीं चलाना है। 40-50 किलोमीटर में तो बॉडी तैयार नहीं होती है कि आप अल्ट्रा साइकिलिंग रेस करें। Right. So my questions are over, Amit. आप क्या कुछ भी आप मैसेज देना चाहते हैं टू द कम्युनिटी? या यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कौन सी बाइक सुटेबल है अल्ट्रा रोड और ट्रायथलॉन? आई थिंक साइकिल ट्रायथलॉन के लिए तो आपको अलग टाइप की साइकिल लगेगी, आपको टाइम ट्रायल साइकिल लगेगी अगर आप ट्रायथलॉन के लिए बहुत सीरियस है तो। पर अगर आप रोड बाइक पे तो हर टाइप की रेस कर सकते हैं। आप रोड बाइक पर भी एरो बार लगाकर उसको बहुत ज्यादा एरो मशीन बना सकते हैं। रोड बाइक से आप फ्लैट्स पे भी रेस कर सकते हैं, आप हिल्स में भी चला सकते हैं। तो रोड बाइक ही खरीदिए जो भी बेस्ट, और उसके ऊपर आप एरो बार्स लगा के आप ट्रायथलॉन भी कर सकते हैं। तो ट्रायथलॉन बाइक का ऐसा है कि अगर आपने ट्रायथलॉन बाइक खरीद ली तो फिर आप वो बहुत ही स्पेसिफिक होती है सिर्फ आयरन मैन करने के लिए, तो बाकी जगह हिल्स में वो साइकिल नहीं चलेगी आपको। तो बेस्ट इज टू बाय अ गुड रोड बाइक with a good racing geometry and आप उसको हर कंडीशन में यूज कर सकते हैं। So I think it's more than 1 hour, Amit. We have taken a lot of time of yours. Thanks a lot for giving your valuable time to all of us. We're very thankful to you, and we hope we see you in Shivalik Signature for flag off. या थैंक यू। थैंक Okay. यू। एक यहाँ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ले लूं मैं? हाँ, sure. सर, डू वी नीड हिल ट्रेनिंग फॉर अल्ट्रा? डेफिनेटली यू विल नीड हिल ट्रेनिंग फॉर अल्ट्रा। अगर आपके जो अल्ट्रा रेस में अगर हिल्स हैं, तो आप डेफिनेटली हिल ट्रेनिंग करिए, वो आपको हेल्प करेगा मेंटली और फिजिकली दोनों। इसके लिए कई बार लोग हिल देख के मेंटली डर जाते हैं, उनको लगता है अरे बाप रे ये बहुत बड़े माउंटेन्स आ गए बीच में और हिल्स आ गए, अभी हम इसमें से कैसे चलाएंगे। तो जरूर हिल ट्रेनिंग करिए। अगर आपके घर के पास में हिल नहीं है तो आप स्मार्ट ट्रेनर पर भी हिल ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो आप उस पर करिए। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, फॉर राइडिंग इन द नाइट इज इट बेटर टू राइड कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग आवर्स विद लॉन्ग ब्रेक और टेक शॉर्ट ब्रेक्स बिटवीन? आई थिंक नाइट राइडिंग के लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप बहुत ज्यादा खाना मत खा लीजिए एक ही टाइम पर। अगर आप बहुत ज्यादा खाना खा लेंगे तो आपको नींद आएगी नाइट राइडिंग में। और आप कैफेनेटेड एनर्जी ड्रिंक पीजिए, जैसे रेड बुल है और दूसरे भी ड्रिंक्स है, तो प्लीज गो फॉर कैफेनेटेड एनर्जी ड्रिंक्स सो दैट आपको नींद ना आए। और अगर आपको नींद आ भी जाती है, तो अगर बहुत नींद आ रही है तो आप पूरा 15-20 मिनट के लिए मत सोइए, फिर पूरा 1 घंटा सो जाइए या 1 से 1.5 घंटा सो जाइए, तो आपका माइंड पूरा रिफ्रेश हो जाएगा और फिर आप राइड लगाइए। Just a minute, Amit. So I think we are almost done with all the questions. There was one more question, I think.
Okay, Amit, I guess we are done with the questions. So we'll just close this discussion and hope to see you soon. Okay, okay. Thank you. Thank you so much. Bye, bye, everyone. Thank you. Bye, guys. Thank you for your time also. Thanks for watching. Thank you so much.